अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम क़ाल रब्बिश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। Assalamu alaikum. Our new topic is atomic mass. So we will just review what was an atom. As we have discussed in our first lecture, an atom is the smallest particle of an element which has all the properties of its parent element. Like we discussed that if hydrogen is an atom, then we write H for the hydrogen. If it is carbon, then we write C for carbon. And now you should understand that in chemistry, when you see something like this 1H1 और C के साथ 6 और 12 इधर लिखा हुआ हो, या फिर Na 11 और 23. So whatever written here, this is called atomic. Just keep it in your mind. This is called atomic number, and this one is atomic mass. What is an atomic mass? We represent an atom like this. For example, this is hydrogen. So we will study in the chapters ahead that atom is a combination of a nucleus, एक nucleus है, and that is the central part, और उसके अराउंड में shells हैं. shells के अंदर इलेक्ट्रॉन घूम रहे हैं और न्यूक्लियस के अंदर न्यूट्रॉन और प्रोटॉन होते हैं. ये आपका इलेक्ट्रॉन है. E फॉर इलेक्ट्रॉन, N से आप याद रखें न्यूट्रॉन, और P फॉर प्रोटॉन. This is the usual way of representing structure of an atom. Similarly, we can make the structure of carbon. Central part is the nucleus, shell. So 2 electrons are there, 4 electrons are in the. So in the central part, again neutron and protons are in the central part, whereas the electrons, they are moving in the shells. Usually we represent the atom like this. This atomic number, keep these important points in your mind while we are discussing this. The atomic number, it represents what? It normally represents number of protons. So it means that in hydrogen we have 1 proton, in carbon we have 6 proton. कार्बन में हमारे पास कितने प्रोटॉन आ गए? 6, और हाइड्रोजन में हमारे पास 1 प्रोटॉन आ गया. अगर हम सोडियम को देखें तो इसके लिए भी अगर हम E, P और N अगर हम लिख लें तो P हमारे पास इसमें आ गए 11 प्रोटॉन्स, आ गए हमारे पास 11 प्रोटॉन्स. जो है नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, वो एटॉमिक नंबर को रिप्रेजेंट करते हैं. और एटॉमिक मास जो है वो क्या होता है? इट इज़ बेसिकली प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन. आसानी के लिए याद रखें कि प्रोटॉन जो है, जो एटॉमिक मास है, वो न्यूक्लियस का मास होता है. और न्यूक्लियस में हमने क्या पढ़ा है? न्यूक्लियस के अंदर न्यूट्रॉन और प्रोटॉन दोनों मौजूद होते हैं. न्यूक्लियस के अंदर न्यूट्रॉन प्रोटॉन दोनों मौजूद हैं. तो अगर एटॉमिक मास जो है वो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का मास है, और हम एग्जाम्पल देखें कार्बन की, तो कार्बन के अंदर हमारे पास, इफ़ एटॉमिक मास ऑफ कार्बन इज़ 12, सो हाउ मैनी नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कार्बन हैज़? इट हैज़ 6. वी हैव डिस्कस 6. 12 के अंदर 6 जो हैं वो प्रोटॉन्स हैं, तो न्यूट्रॉन्स कितने होंगे? बाकी के जो 6 होंगे वो न्यूट्रॉन्स होंगे.
So we say that actually what is basically this atomic mass? Atomic mass is basically the number of protons and neutrons, or you can say that the mass of a nucleus is the atomic mass. Now come to the proper definition of this atomic mass. The average mass of natural mixture of isotopes of an element which is compared to the mass of one carbon 12 atom, और जिसका मास कितना हो 12.011 atomic mass unit. Atomic mass unit is the unit of atomic mass, but it is very small unit. Try to understand, this is very small unit. You should also know what is the definition of one atomic mass unit. It is exactly equal to the mass of 1/12 the mass of carbon atom. Atomic mass unit is how much? It is the mass exactly equal to 1/12 the mass of carbon atom. 1/12 का मतलब पूरा ये आपके पास कार्बन एटम आ गया. इस कार्बन एटम के आप 12 हिस्से करें, 12 हिस्से कर दें तो उसका जो एक हिस्सा आप उठाएंगे दैट विल बी इक्वल टू 1/12, यानी 12 में से एक हिस्सा जो होगा वो जो है 1 एटॉमिक मास यूनिट होता है. वी नीड टू अंडरस्टैंड हियर व्हाट इज दिस आइसोटोप्स. लुक एट द एग्जाम्पल ऑफ दिस कार्बन. एक्चुअली जो नेचर के अंदर जो कार्बन पाया जाता है उस कार्बन में एक बात जो आपको आइसोटोप्स के लिए आपको समझने की ज़रूरत है वो ये कि एन एलिमेंट्स हैज़ मैनी एटम्स. किसी भी एलिमेंट के बहुत सारे एटम्स होते हैं, तो हम कंसीडर कर रहे हैं कार्बन की एग्जाम्पल. अब अगर आपके पास कार्बन है, फॉर एग्जाम्पल आपके पास थाउजेंड्स ऑफ कार्बन एटम्स हैं, तो ये एक कार्बन का अगर आपके पास पीस है तो कार्बन के इसके अंदर बहुत सारे एटम्स होंगे. इसमें जो है जब देखा गया तो ये पता लगा कि कार्बन के सारे एटम्स जो हैं वो एक जैसे नहीं होते, बल्कि कुछ कार्बन के एटम्स जो हैं वो C6 और 12 भी होते हैं और कुछ सम पार्ट वो C6 और 13 भी होते हैं. तो इसलिए इन दोनों को मिलाकर के बट इसका पार्ट तकरीबन 99% है और इसका अराउंड 1% है. तो इन दोनों को मिला करके जो कार्बन का एटॉमिक मास यूनिट निकलता है वो 12.011 निकलता है. फॉर द आइसोटोप्स वी विल सी अनदर एग्जाम्पल दैट इज फॉर क्लोरीन. नाउ सपोज दैट हेयर वी टेक क्लोरीन. So we have so many atoms of chlorine. अब क्लोरीन के आइसोटोप्स जो हैं वो दो आइसोटोप्स नेचुरली पाए जाते हैं. क्लोरीन को Cl से रिप्रेजेंट करते हैं और 17 इसका जो है एटॉमिक नंबर है 35 वाले, और दूसरा जो है वो क्लोरीन 37 वाला. जो 35 वाला है ये 75% पाया जाता है और ये जो है 25% पाया जाता है. मीन्स कि अगर यहाँ पे आपके पास 100 एटम हैं क्लोरीन के तो 75% का मतलब 75 क्लोरीन के एटम 35 एटॉमिक मास वाले होंगे और 25 जो एटम्स हैं क्लोरीन के वो 37 एटॉमिक मास वाले होंगे. ये दो डिफरेंट आइसोटोप्स हैं जो क्लोरीन के पाए जाते हैं. आइसोटोप्स की डेफिनेशन हमने जैसे डिस्कस की अभी कि सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट एटॉमिक मासेस. यहाँ पे आप ये बात एक और भी जहन में रख लें कि एटॉमिक नंबर सेम होने का मतलब हमने डिस्कस किया था एटॉमिक नंबर रिप्रेजेंट करता है नंबर ऑफ़ प्रोटॉन्स को. तो नंबर ऑफ़ प्रोटॉन्स एक्चुअली आइसोटोप की डेफिनेशन यूँ भी आपको नज़र आएगी कि नंबर ऑफ़ प्रोटॉन्स तो सेम होते हैं लेकिन नंबर ऑफ़ न्यूट्रॉन्स का फ़र्क होता है. यानी इसके क्लोरीन के 17 नंबर ऑफ़ प्रोटॉन्स हैं, लेकिन जब आप यहाँ पे देखेंगे तो जो डिफरेंस आएगा वो नंबर ऑफ़ प्रोटॉन्स का आएगा. ये आप माइनस कर लें 35 में से इसको आप माइनस करेंगे
तो ये 18, इसके न्यूट्रॉन्स जो हैं वो आ जाएंगे, इसके n जो हैं वो 18 आ जाएंगे, और इसके अंदर जो न्यूट्रॉन्स आएंगे वो 20 न्यूट्रॉन्स आ जाएंगे। तो आइसोटोप्स को यूं भी डिफाइन करते हैं, आइसोटोप्स आर दोज एटम्स ऑफ अ सेम एलिमेंट विच हैज डिफरेंट नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। नाउ व्हाट वी वर डूइंग, एक्चुअली ये आपकी बुक के अंदर एक क्वेश्चन भी है और वैसे भी पूछा जा सकता है। हमें क्लोरीन का एटॉमिक मास निकालना है, तो अगर हमें क्लोरीन का एटॉमिक मास निकालना है और हमें पता है कि 75% क्लोरीन 35 वाला है और 25% ये है, तो आप इजीली, अगर आपसे पूछा जाएगा इसका एटॉमिक मास आप कैसे निकालेंगे, तो 35 इसकी मल्टीप्लाई होगा ये 75% से। तो परसेंट का मतलब ये होता है, परसेंट का सीधा सा मतलब ये होता है कि 75 को आप डिवाइड कर दें 100 से। जब आप डिवाइड करेंगे 100 से तो ये आ जाएगा 0.75, क्योंकि 35 वाला 75% है, उसको इससे मल्टीप्लाई किया, और 37 वाला आपके पास ये है 25%, उसको भी हमने मल्टीप्लाई कर दिया। तो जब आप इसका आंसर चेक करेंगे, यू विल गेट द रिजल्ट दैट इट इज़ 35.5। Now the empirical and molecular formula. There are two types of formulas which are written for the compounds. Compounds क्या हैं, हमने डिस्कस किया था कि एटम्स जो हैं वो आपस में मिलकर मॉलिक्यूल्स बनाते हैं, दो या दो से ज़्यादा एटम आपस में मिलते हैं, मॉलिक्यूल बनाते हैं। फॉर एग्जांपल O2 ये एक मॉलिक्यूल है, इसी तरीके से N2 या Cl2 ये सारी गैसेज हैं, ये भी मॉलिक्यूल हैं। उसके अलावा हम पहले भी पढ़ चुके हैं, CO2 हो गया, H2O, ये सारे मॉलिक्यूल हैं, H2SO4, HNO3, ये सारे के सारे मॉलिक्यूल हैं, और इन्हीं को हम कंपाउंड्स भी बोलते हैं। ये कंपाउंड्स कहलाते हैं। दीज आर डिफरेंट कंपाउंड्स। कंपाउंड्स जिसमें जो है वो बहुत सारे एटम्स आपस में मिले हुए होते हैं। सो जो कंपाउंड्स हैं उनके जो फार्मूले हम लिखते हैं, वो फार्मूले जो है वो दो तरह से लिखे जाते हैं। फर्स्ट वन जो है वो कहलाता है एम्पेरिकल फार्मूला। एम्पेरिकल फार्मूला क्या होता है, इट रिप्रेजेंट द सिंपलेस्ट रेशियो ऑफ एटम्स इन अ कंपाउंड। ये सिंपलेस्ट रेशियो बताता है जो एटम्स आपस में मिले हुए होते हैं एक कंपाउंड के अंदर। मिसाल इसकी आप यूँ समझ लें कि एक हमारे पास कंपाउंड है C6H6, इसको हम बेंजीन कहते हैं। ये एक कंपाउंड है जिसमें 6 कार्बन मिले हुए और 6 ही हाइड्रोजन मिले हुए। अगर कोई आपसे कहे कि एक कार्बन के लिए कितने हाइड्रोजन इधर मिले हुए हैं, तो आप कहेंगे एक कार्बन के साथ एक हाइड्रोजन मिला हुआ है। दिस इज कॉल्ड द सिंपलेस्ट रेशियो ऑफ बेंजीन। H is the empirical formula of benzene. So you can give example of this benzene. The simplest formula of the benzene is CH. और एक और मिसाल ले सकते हैं, C6H12O6। इसमें अगर हम निकालें तो इसका क्या सिंपलेस्ट, एक कार्बन के लिए 2 हाइड्रोजन निकलते हैं और 1 ऑक्सीजन निकलता है। सिंपल मैथ है। तो CH2O ये जो है एम्पेरिकल फार्मूला है इस कंपाउंड का, C6H12O6 का। तो एम्पेरिकल फार्मूला सिंपलेस्ट रेशियो को बताता है, और सिंपलेस्ट रेशियो मैंने आपको समझा दिया, एक एटम के लिए आप निकाल लें। और मॉलिक्यूलर फार्मूला ये एक्चुअल नंबर ऑफ एटम्स को बताता है कंपाउंड के अंदर। तो बेंजीन का जो एक्चुअल फार्मूला है वो ये है, दिस इज़ द एक्चुअल फार्मूला, दिस इज़ द एक्चुअल फार्मूला। सो ये जो फार्मूले हैं ये कहलाएंगे मॉलिक्यूलर फार्मूले। हाँ, समटाइम्स आपको उन्होंने एम्पेरिकल फार्मूला दिया हुआ होगा और आपसे कहा जाता है कि मॉलिक्यूलर फार्मूला निकालें, और उसका जो मल्टीपल अगर आपको दे दिया जाए, जैसे बेंजीन के अंदर भी जो नंबर है वो 6 है, और ये ग्लूकोज है इसके अंदर भी नंबर 6 है। तो इसका फार्मूला यूँ होता है एम्पेरिकल फार्मूला, और इसके साथ आप यहाँ पे n जो है वो होल नंबर है। जैसे यहाँ पे इन दोनों के दरमियान जो होल नंबर है वो क्या है, 6। यानी इस एम्पेरिकल फार्मूला को अगर आप यहाँ पे लिखें
CH बेंजीन का हमने निकालना है, आपको दे दिया है सवाल में कि CH जो है वो एम्पेरिकल फार्मूला है, तो आप इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला निकालें। और N जो है आपको यहाँ पे कितना दिया होगा, N आपको दिया हुआ होगा 6 के बराबर, तो आप यहाँ पे 6 लिखें और ये 6 दोनों के साथ जाके लग जाएगा, ये आपका मॉलिक्यूलर फार्मूला आ जाएगा। और अगर N निकालना हो, कभी N भी निकालने को अगर दे सकते हैं, तो N का फार्मूला है ऊपर मॉलिक्यूलर फार्मूला मास आ जाएगा और नीचे आ जाएगा एम्पेरिकल फार्मूला मास। ये मॉलिक्यूलर फार्मूला मास या एम्पेरिकल फार्मूला मास ये हम नेक्स्ट टॉपिक में अभी निकालेंगे।